Okay, so till now, what we have understood is we have understood the model of Rutherford and Thomson. Okay, and the important points of Rutherford model was that the atom is like our solar system. Electrons are going to do the orbiting around nucleus, and the size of nucleus is 10 to the minus 15 meter, right? And the fraction of let's say nucleus with respect to the atom is that is 10 to the minus 15, and all the mass is concentrated at the nucleus. So that is what we have learned. Now, how Rutherford was able to come to this point that what is going to be the radius of this value which we have calculated, what is going to be the radius of nucleus, how he is able to get this approximate value. So we are going to understand how this 1.33 into 10 to the minus 15 into h to the power 1 by 3 like this he is able to get. So what is the basis of that? We will understand. So that is 10 to the minus 13 centimeter, and I said meter. So just remember units are very important. Okay, Rishikesh. So I will say calculation of radius of nucleus, or you can say closest approach of alpha particles towards nucleus. So for that we need to understand, है ना, two or three things. So this is basics, है ना, or you can say properties of charge. तो होता क्या है, if let's say we are having 2 point charge, one is let's say q1, another one is q2, and if the distance between them, these two charges is r, ठीक है. So what is going to happen, the force is going to apply. This force is going to be electric force. So electric force will be present between these charges, and this what is going to be the nature of the force, that depends on the nature of charge. If q1 and q2 are in the same, let's say, nature, means either both are positive or both are negative. If q1 and q2 and of same nature, then the repulsion is going to happen. So between these charges, if q1 and q2 are of same nature, then what will happen? Repulsion. And if q1 and q2 are of opposite nature, then that is going to be attraction. तो एक तो ये बात है, ये बेसिक थोड़ा बता रहा हूँ so that we can understand the जो हमने ऊपर देखा है, ठीक है. Yes, you have to write it. ये सब आपको लिखना है, ठीक है. तो फिर भाई जल्दी से लिख लो जिन लोगों ने नहीं लिखा है अभी तक.
मीनवाइल किसी को कोई डाउट? सर एक बार फिर से कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताओ। क्या? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फिर से बताओगे क्या? अभी हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने कुछ बताया ही नहीं है, ये बस हेडिंग है। और इसको ओके। समझाने के लिए वी आर सेइंग कि पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो वो हम समझ रहे हैं। ओके सर। सर नेचर से मतलब कि आप साइन के बारे में बोल रहे हो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ, साइन के बारे में। अच्छा। देन चलो, तो let's say we are having we are able to understand the nature of force. So what is the amount of the force and what are the factors which are going to affect? So this electric force I'm going to write, let's say Fe. So Fe is proportional to Q1, Fe is proportional to Q2, and Fe is inversely proportional to R square. That means electrical force is proportional to magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between charges. So we can write the expression, we can write hence F electric is nothing but K Q1 Q2 by R square, where K is constant and K is nothing but 9 into 10 to the power 9. ठीक है, Newton meter square divided by Coulomb square. This is the unit. How we are able to get this unit? आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और ये Q1 Q2 डाउन हो जाएगा, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Fe into R square. So Fe is Newton, R square मीटर स्क्वायर एंड Q1 Q2 के कारण Coulomb square. So इसको C से लिख रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? लिख लो भाई इसको, कोई डाउट? सर एफई क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके। Sir, that is Newton meter square per Coulomb square, right? हाँ, ठीक है, ये लिख लो। सर एफई क्या डिटेक्ट करता है? मैंने इलेक्ट्रिकल सुना नहीं फोर्स, था। इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ इलेक्ट्रिक। लिखा हुआ है, देखो ऐसे थोड़ा सा है ना, ओके सर। ई फॉर इलेक्ट्रिक इसलिए लिख लिया है Fe, वरना आप एफ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
सर के मतलब क्या के मतलब के मतलब कांस्टेंट? नहीं सर, पर कौन सा? कौन सा कांस्टेंट? अब एक्चुअली क्या है कि जो के होता है, फिर इसमें फिर हम एक और अंदर चले जाएंगे, तो बस अभी इतना समझो, के इज कांस्टेंट। के इज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो मीडियम की नेचर पे डिपेंड करता है। देखो भाई, दो अलग अलग चार्जेस हैं। पानी में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा। एयर में रखोगे अलग लगेगा। किसी पोलर और नॉन पोलर, अब ये भी नहीं पता है ना आपको, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो किसी पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखोगे तो अलग अलग फोर्स लगेगा। तो इसलिए अभी बस इतना समझो, के इज कांस्टेंट। ठीक है सर ऊपर करो ना, वैल्यू देखनी है की। तो नीचे करना होता है उसको। सॉरी। अरे अपने आप को म्यूट तो करो। यस। चलो हाँ। ठीक है, आगे चलें। ओके। बोलो भाई रुशील। सर ये आपने के कांस्टेंट में न्यूटन इनटू मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर लिखा है ना? हाँ, तो डैश का मतलब है यहाँ पे ये बस अलग अलग है और कुछ नहीं है। बोलो भाई सिद्धांत। सर कूलम नीचे क्यों आएगा? मतलब कूलम ऊपर जाना चाहिए ना। आई मीन न्यूटन इनटू कूलम स्क्वायर, मतलब फिर उसके बाद डिवाइड का साइन, उसके बाद मीटर स्क्वायर आना चाहिए ना, करेक्ट? क्यों आना चाहिए भाई? के की यूनिट निकाल रहे हो कि फोर्स की यूनिट निकाल रहे हो? अच्छा ओके 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 सर, समझा समझा। ओके। सर ये एफ इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू पर आर स्क्वायर में Q1 Q2 और आर स्क्वायर क्या है सर? चार्जेस हैं, Q1 चार्ज है, यहाँ ऊपर लिखा है, मतलब और ये ऐसे आर, बताया है। आपने लिखा नहीं क्या था क्या? आर हाँ क्या लिखा लिखा हुआ है ये? है सर। थोड़ा यहीं रहो बेटा, भागो मत इधर उधर। सॉरी सर। हाँ चलो फिर ओके। अभी भी डाउट है? बोलो। हेलो, हाँ राजदीप बोलो। सर तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है ना, और मैंने कुछ बोला क्या? ये तुम फिर वही है, तुम मुझे अपना क्यों बताते रहते हो कि तुम्हें क्या समझ में आया? मैंने बोला ऐसा कुछ किसके बीच में प्रेजेंट होता है क्या? वाह, थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, अभी आएंगे आगे। हाँ बोलो। सर ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे लगता है क्या इक्वली? ऑब्वियसली हाँ, ओके सर। ऑब्वियसली। तो एक एक चार्ज दूसरे चार्ज को उस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। So this is the force. Now we will come to another part, that is potential energy. Potential energy क्या होती है? So potential energy is going to be potential energy जो आती है वो interactions के कारण आती है. The energy stored due to interaction between two charges. अगर हम बात करें अर्थ की, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो हम बात करते हैं, वो भी किसके कारण आती है ना, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द अर्थ। तो आप एच क्या है वहां पे, डिस्टेंस हो गया, तो और mg क्या है, फोर्स है। तो इफ यू आर गोइंग टू से mg into h, दैट इज नथिंग बट फोर्स into डिस्टेंस। ठीक है, तो how they are, the earth is going to attract any body of mass m, that is by mg towards itself,
and the h is the distance, so that's why we are saying mgh. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, इसको मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ PE, which is nothing but force into distance. So यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग समझ सकते हो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 by R, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 by R, क्योंकि R स्क्वायर फोर्स है और इंटू R हो जाएगा तो ये कट जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. एक और चीज, if any charge is present at the surface, or you can say space, ये साहिल अपना माइक म्यूट कर लो, है ना. ठीक है. स्पेस हैविंग potential is represented by V. ठीक है. Having potential, let's say some potential is present, then what is going to, if charge is present at the surface, surface का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई, मैंने बोला अभी या स्पेस, तो मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे अभी हमने कैथोड रे ट्यूब की बात की थी, राइट, और हमने यहाँ बैटरी लगाई थी. ठीक है. So we have put some battery over here. मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट की है. ठीक है. मान लो ये बैटरी क्या है, 10 वोल्ट की है. इसका मतलब क्या है कि इस पे 10 वोल्ट का मतलब क्या है, रेफरेंस है ना. तो अगर इस पे पोटेंशियल 0 है तो इस पे 10 है. इसका मतलब ये है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन है ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस 10 वोल्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट. तो क्या जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, 0 से बिल्कुल इसके पास ही पहुंच जाएगा, जस्ट, है ना, इस पे पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्या इंटरेक्शन होगा इनके बीच में. ठीक है. ये हमें समझा रहा हूँ. वोल्ट का मतलब समझ रहे हो, जो आपकी बैटरी होती है उस पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हो, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा होता है 1.5 वोल्ट बैटरी, 2 वोल्ट बैटरी, है ना. अगर बहुत सारी बैटरी कॉम्बिनेशन में लगा दी जाए तो 12 वोल्ट बैटरी, ये अपने घर में यूज होता है इन्वर्टर में, राइट. अगेन जयेश, we don't want to get in how we are getting the K value 9 into 10⁹. ठीक है. ये सब फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. तो बस इतना होता है, हमारा इतने में काम हो जाएगा, हम आगे चलते हैं. क्योंकि अभी हम फिजिक्स पढ़ने बैठेंगे ना तो फिर कोई कहेगा एप्सिलॉन क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे आती है, राइट. सो वी विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू सम अदर डिस्कशन पार्ट जो हमें अभी चाहिए नहीं और अभी समझ में भी नहीं आएगा. ठीक है जयेश. तो मैंने केवल इतना बोला है अभी. एक मिनट. यस श्रेया बोलो. सर आपको पोटेंशियल एनर्जी वाले से एक बार फिर से समझा दीजिएगा प्लीज. क्या बताया अच्छा मैंने अभी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस. आपने mgh तो पढ़ा होगा ना सबने. क्या सर. mgh हाँ. ये पढ़ा है ना 10th में. पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है. यस और नो, इतना बताओ मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ा है. नहीं पढ़ा है तो से नो. नहीं सर. नहीं पढ़ा है. हाँ. तो जैसे वो कहते हैं ना कि एक बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका, है ना, वो मान लो 10 मीटर तक पहुंच गई, राइट. तो जब वो 10 मीटर पे है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. यस सर. है ना. ये पढ़ा है आपने, एनर्जी कंजर्वेशन. यस सर. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. हाँ. हाँ. तो जब आपने यहाँ से कोई मान लो बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, तो आपने उसे काइनेटिक एनर्जी दी, स्पीड दी, है ना. यस. और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है. इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है और वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है. तो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, मान लो 10 मीटर हमने बोला था, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंच जाएगी.
हेलो हेलो